थे। The most foremost thing that I like the most in my life is discipline. और मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण की बात है अनुशासन। I lived in discipline for more than 5 years in New Theological College. मैंने न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज से 5 साल से अनुशासन को सीखा है। There, as I was in discipline, I became the leader of more than 800 students, and more than 800 mobile phones are under me. If I want to give the person the mobile phone, that is given. और ये अनुशासन के कारण मैं बहुत बच्चों का 800 से ऊपर बच्चों का मैं एक लीडर बन गया, जिससे कि अगर सब जो फोन थे वो मेरे पास होते थे और अगर मैं चाहता तो मैं उनको दे सकता था। If I want, I can give them. If I don't want to give them, I don't. और अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको दे सकता था, अगर मैं ना चाहूँ तो मैं नहीं देता। Giving you an example of the being in disciplines give you a quality of leadership. मैं बस आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब आप अनुशासन में चलते हैं तो आप एक लीडर के समान बन जाते हैं। This discipline also I have maintained in my church too. और ऐसा अनुशासन मेरे चर्च में भी बना है। Everyone is given their duties that they need to do. और वहाँ पे सबको अलग-अलग सेवा दी है, उनको करनी पड़ती है। So before we begin, let's look to the Lord in prayer. और उस वचन शुरू करने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Gracious God, loving Heavenly Father, we come before you, Majesty. We thank you for this time that you've given to us to be here in your presence, Jesus Christ. I want your power to move in this place. I want your Holy Spirit to work in this place. Thine Majesty, thine kingdom may be seen in this place. Bless your name, we glorify your holy name. In Jesus' name we pray this prayer. Amen. Hallelujah. 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 The topic of my sermon today I'm going to give you is the call of discipleship. आज का मेरा विषय है शिष्यता की बुलाहट। Taken from Matthew chapter 4 verse 19, there it says, जो कि मत्ती 4:19 में कहता है, Then he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men. और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Luke 9 verse 23 says, लूका 9:23 में कहता है, If anyone desireth to come after me, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, let him deny himself, तो वह अपने आप का इनकार करे take up the cross, और प्रतिदिन and follow me. अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to repeat the references. Matthew 4:19 and Luke 9:23. मैं फिर से आयतों को बोलना चाह रहा हूँ, मत्ती 4:19 और लूका 9:23। Today I'm going to give you something that is very close to Jesus' heart. और मैं आज आपको कुछ देने जा रहा हूँ जो कि परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब है। It is not a miracle. वो कोई चमत्कार नहीं, It is not a crowd of lots of people. वो लोगों की भीड़ नहीं, It is not a fame. प्रसिद्धि वो कोई प्रसिद्धि नहीं है, But it is a discipleship. पर वो एक शिष्यता की बुलाहट है। वो ना एक चमत्कार है, not a miracle. वो ना एक भीड़ है और ना ही एक बड़ी होती है. And that is called a discipline which Jesus liked the most. Hallelujah. और वो ही अनुशासन है जो परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। Christianity today has many believers. और बहुत से आज मतलब क्रिश्चियनिटी में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं। There are lots of listeners who are listening the word of God. बहुत से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। Many follow the message of Jesus. और बहुत से परमेश्वर के वचन को मानते हैं। But you know what? पर आप जानते हैं क्या? Jesus is not looking for believers. परमेश्वर विश्वासी को नहीं देखते। He is looking for a disciple. परमेश्वर शिष्यों को देखते हैं। The disciple word came from the root word discipleios, which means discipline. जो डिसाइपल वर्ड है, जो शिष्य वर्ड है, वो डिसिप्लियो से आया है, which means discipline. जिसका मतलब है अनुशासन। A disciple is the one who is disciplined person. और जो शिष्य है वो अनुशासन में चलता है। And Jesus is only looking for this discipline or a disciple.
और यीशु मसीह भी एक अनुशासन को और एक शिष्य को ढूंढ रहा है जिसके पास अनुशासन है। When Jesus walked upon the earth till he was here upon this earth, जब यीशु पृथ्वी पर चले उन्होंने ये नहीं किया, he did not say that come and attend my meetings. उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ और मेरी सभा को अटेंड करो। He did not teach his disciple or the crowd of peoples to come and enjoy my miracles, the miracles I do. उन्होंने एक भीड़ को अपने चेलों को ये नहीं कहा कि आओ और मेरे चमत्कारों को एंजॉय करो। He said a very powerful sentence there. उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, He said, follow me. उसने कहा मेरे पीछे आओ, Follow me. मेरे पीछे आओ। Because he was the one who was indisciplined and he wants you to be a disciplined and a disciple of Jesus Christ. क्योंकि वह परमेश्वर है जो खुद अनुशासन का परमेश्वर है, और वो आपको भी चाहता है कि आप अनुशासन में चले और आप परमेश्वर के शिष्य बने। Discipleship is not about knowing about Jesus. शिष्यता का मतलब ये नहीं है कि यीशु को जानना। It is not about knowing about Jesus. Listen this carefully. शिष्यता का मतलब ये नहीं है कि यीशु को जानना। Discipleship is about walking with Jesus like he walked. शिष्यता का मतलब है कि यीशु के साथ चलना जैसे वो है। It was just a short introduction. ये बहुत एक छोटा सा परिचय था। A new meaning of what is the meaning of discipleship. I'm going to teach you now. और एक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिष्यता का मतलब आखिर में है क्या। What is discipleship? शिष्यता क्या है? A disciple is not the one who believe in Jesus Christ. शिष्य वह नहीं जो सिर्फ चेला वह नहीं जो परमेश्वर को मानता हो। A disciple is not just who believe Jesus is the Lord. और चेला वह नहीं जो परमेश्वर को प्रभु करके मानता हो। A disciple is someone who live according to Jesus lived upon this earth. चेला वह है जो अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार चलाता A है। disciple is the one who live according to the Lordship. और चेला वह है जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। According to John, Gospel of John, chapter 8, verse 31, he says, यूहन्ना 8 के 31 में वो ऐसा कहता है कि if you abide in my word, you are my disciple indeed. यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले हो। Discipleship means living like Jesus, शिष्यता का मतलब है कि यीशु की तरह रहना, learning like Jesus and learning from Jesus, यीशु की तरह सीखना और यीशु से सीखना, loving what Jesus loves. और जो परमेश्वर प्रेम करता है उससे प्रेम करना। And discipleship means obeying what Jesus commanded. और चेलों का ऐसा है कि चेले परमेश्वर के अनुसार चले। Many people want Jesus as a savior, बहुत से लोग यीशु को उद्धारकर्ता चाहते हैं, but they know Jesus as Lord. पर बहुत कम लोग हैं जो यीशु को प्रभु मानना चाहते हैं। They just want Jesus as Lord. पर वो यीशु को परमेश्वर जैसा मानते हैं। Listen this very carefully. इसको ध्यान से सुने। You cannot separate Savior from Lord. आप उद्धारकर्ता को प्रभु से अलग नहीं कर सकते। He is the Lord and the only Savior, Jesus Christ. वह परमेश्वर है और वह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। When Jesus calls us, जब परमेश्वर हमें बुलाते He हैं, calls us completely. वो हमें पूरी तरीके से बुलाते He हैं। doesn't call our heart or just call our lungs or just call our brain. He just calls from up till down. वह केवल हमें हमारे दिल को नहीं, हमारे दिमाग को नहीं, बल्कि वह हमें ऊपर से लेकर नीचे तक हमें बुलाते हैं। Hallelujah. 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 In your family, He just not only call one person. He just call everyone because He loved the world, not a single person. वो आपके परिवार में बस केवल एक मनुष्य को नहीं, बल्कि वो पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को बुलाता है, क्योंकि उसने सबसे प्रेम किया है। Hallelujah. He loved not only the Christians. उसने केवल ईसाइयों से प्रेम
दिया। Christian word itself is a wrong word given by some one person. और जो क्रिश्चियन वर्ड है, जो क्रिश्चियन शब्द है, वो भी गलत शब्द है, किसी के द्वारा दिया गया। हम मसीही हैं। We are not Christians. हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। You know what? मसीही कौन होता है? मसीही is the one who is very close to Jesus' heart. जो मसीही होते हैं, वो परमेश्वर को, यीशु के हृदय के बहुत करीब होते हैं। He is a disciple. और वह चेले होते हैं। And the Christian is the one who says, Christ is in me, they are not in him. और जो क्रिश्चियन होते हैं, वो कहते हैं कि यीशु जो है, मसीहा जो है, वो मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूँ। We are मसीही. हम मसीही हैं। We are not Christians. हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। We are believing in him. हम उस पर विश्वास करते हैं। And he is working in us. That is called और discipleship. वो हम में काम करता है, वो ही शिष्यता कहता है। You know what? When Jesus called Peter, आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने पतरस को he बुलाया, called Andrew. Andreas. ओके, He called James. उसे याकूब को बुलाया He called John. और उसे यूहन्ना को बुलाया। They were busy in their own works. Can you please silence that? वे अपने कामों में व्यस्त थे। They were busy in their works. वे अपने कामों में व्यस्त थे। They were busy in their nets. वे अपने जालों में व्यस्त थे। They were busy in their responsibilities. वे अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। They had their own plans. वो उनकी कुछ अपनी योजनाएं थी। Peter, Andrew, James, all the 12 disciples to whom he called, come and follow me. They followed him and left all what they were doing. पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना अपने कामों में व्यस्त थे, पर परमेश्वर ने उनको बुलाया और उन्होंने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। They might be busy in their most important works. वो अपनी बहुत जिम्मेदारी काम में, बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो सकते हैं, But they left everything and they followed Christ. As soon as he said them, follow me. पर उन्होंने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। They might not have a time, क्या पता उनके पास टाइम ना हो, but they left everything. पर उन्होंने सब कुछ छोड़ा। They left important works. उन्होंने अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को छोड़ दिया They left everything and followed him. और उन्होंने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। Discipleship is the one who never deny the denial of Christ. शिष्यता एक ऐसा है जो परमेश्वर के कामों को डिनाई नहीं करता, परमेश्वर के कामों का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के कामों में चलता है। Discipleship never deny the call of Christ. और जो शिष्यता है, जो चेलों का बनना है, वो कभी भी परमेश्वर के काम का उल्लंघन नहीं करती, बल्कि परमेश्वर के कामों को फॉलो करते हैं। The Bible says that बाइबल कहती है कि whosoever he told, follow me, जिसको वो कहता है कि मेरे पीछे आओ, they immediately left everything. वो उसी वक्त वह तुरंत अपने सब कुछ कामों को छोड़ देते हैं And they followed Christ. और वह मसीह को फॉलो करना, मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते In हैं। today's scenario, और आज के युग में no one do that. और कोई भी ऐसा नहीं करता, Not even a single person. कोई भी एक मनुष्य भी ऐसा नहीं करता। They say we don't have time. वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, They don't have time. उनके पास समय नहीं है। There are 24 hours in a day and they still don't have a time. और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर फिर भी वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। They have 24 hours, leave the 8 hours. How much left? 16 hours. 16 hours are there and still they say we have busy in our works. 16 घंटे होते हैं, पर फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। Jesus created the time. Time didn't create Jesus. As he want, that should be done on that time. यीशु मसीह ने समय को बनाया, बल्कि समय ने यीशु मसीह को नहीं बनाया। And what people don't have, और परमेश्वर लोगों के पास क्या नहीं है, they are slave of time. वो टाइम
की कदर नहीं करते हैं। They are slaves of time. गुलाम, गुलाम। समय के गुलाम हैं वो। And they can't do anything about their lives. और वे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। Discipleship is the one who create time. शिष्यता जो है, चेला बनना जो है, वो है कि परमेश्वर के टाइम के अनुसार चलना। Discipleship is the one who bring fruits according to the time. और जो शिष्यता के अनुसार चलना ऐसा है कि वो फलों को परमेश्वर के लेकर आते हैं। Discipleship always begin with the decision. और जो शिष्यता बनना है वो हमेशा एक डिसीजन के साथ बनता है। Discipleship, then discipline, then take a decision. और सबसे पहले शिष्य बनना, फिर उसके बाद अनुशासन में चलना, फिर एक डिसीजन को लेना। Hallelujah. Hallelujah. A decision needs to be taken to become a disciple. और एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अगर आपने चेला बनना है। And to become a disciple, you need to be in a disciplined manner. और अगर आपने चेला बनना है तो आपको अनुशासन में चलना होगा। Living your old life, living your old habits, living all the old priorities, living all the old identities. You need to begin a life with a new identity, with a new decisions, and with a new life. और अपने सब पुराने कामों को, पुरानी जिंदगी को त्याग कर, अपनी जितनी भी डिजायर्स को त्याग कर, आपको परमेश्वर के अनुसार अनुशासन में और उसके चेले बनना पड़ेगा। This is the ecclesia of Christ, means a church of Christ. That is, Jesus Christ is the head of this Christ. और ये ही एक्लीसिया कहलाता है जिसे चर्च कहते हैं, परमेश्वर का सिर। This is the son of Christ, or we can say the head of Christ. और ये ही परमेश्वर का सर कहलाता है। You all are given different opportunities, different times. आप सबके पास अलग अवसर और अलग समय है। You have to leave everything. You need to take Jesus Christ as the most important priority into your lives. आपने सब कुछ छोड़कर सबसे बड़ा काम ये करना है कि यीशु मसीह को अपनी प्रायोरिटी समझना है। Everyone has given different books. और सबके पास अलग काम होते हैं। There are lots of people in the church. बहुत से लोग होते हैं चर्च में। Everyone, one sound tackler, the one who tackle the sounds. Sound operator. There are different books given to every person. A sound operator is another person. The workers are अलग, जो खाना बनाते हैं वो अलग होते हैं, सेवादार अलग होते हैं, जो चर्च में लाते हैं लोगों को वो डिसाइपल होता है। Discipleship is the one who bring more sheep into the church, because you are the sheep. There in the Bible it is not written a shepherd bear a sheep. There is written that sheep bear sheep. भेड़ को जन्म देता है, right? चेला बनना ये नहीं है कि हम अपने कामों में व्यस्त रहे, बल्कि चेला जो होता है वो और भेड़ों को चर्च में लेकर आता है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि चरवाहा भेड़ों को जन्म देता है, बल्कि बाइबल में ये लिखा है कि भेड़ भेड़ों को जन्म देती है। We have more than 25,000 people from all over India in our church. हमारे चर्च में 25,000 से भी ज्यादा कलीसिया है, ज्यादा लोग हैं। In Jammu and Punjab. और जम्मू में और पंजाब में। Chhattisgarh we have 78 pastors that works under us, and every उनकी कलीसिया में लाके 1 लाख से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 72 पास्टर्स हैं हमारे चर्च में, जो हमारे 79 पास्टर्स हैं जो हमारे अंडर होकर वहाँ पे कलीसिया सेवकाई कर रहे हैं। We built discipline in their lives, and that showed the outcome of a discipline. हमने उनकी जिंदगी में एक अनुशासन को बनाया और वो अपना काम, अपनी सेवकाई को दिख रहा है। We are not that old enough to deny the work of Christ. और हम परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के कामों का उल्लंघन नहीं करते हैं। We are not that old enough. और हम इतने बड़े नहीं हो गए, हम इतने बुढ़े भी नहीं होंगे कि हम प्रभु का काम नहीं कर पाए। Okay? We are not that old enough to do the work of Christ. और हम इतने बूढ़े भी नहीं होंगे कि हम परमेश्वर का काम वो ना कर सके। Abraham was called at the age of
175 age, he worked for the Lord. That means 100 years he spent in the presence of the Lord and he worked for the Lord. अब्राहम 75 की उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको चुना और 75 की से आगे उसने 100 साल उसने परमेश्वर की सेवकाई की। 75 to 175 years means 75 to 175 means at age of 175 he died and 100 years he preached the gospel to the nation. उसने 100 साल उसने परमेश्वर के वचनों को अपने वचनों को सुनाया और 175 में उसकी मृत्यु होगी। And here what we say, in today's scenario what we say, और आज के युग में हम क्या कहते हैं कि टूट गया मेरा, नहीं लगा, नहीं आता प्रभु का। चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता, भेड़ अनुसार you need to be in a discipline to bring भेड़ from your life. आपको अनुशासन में आना पड़ेगा भेड़ को जन्म देने के लिए, क्योंकि भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता। हालेलुया। किसी के घर में गया था मैं, लाइक रूपनगर में रहते हैं, they live in रूपनगर। वो रूपनगर में रहते हैं। And there, I was just standing outside their house. मैं उनके घर के बाहर खड़ा हुआ था। And they were like गालियाँ दे रहे थे, husband wife एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। और वो मियाँ बीवी एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मैं बाहर खड़े होकर सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं मानते समझ हुआ करते। अंदर गया मैं 15 मिनट के बाद, after 15 minutes I went inside. और 15 मिनट के बाद मैं अंदर गया। And then you know what they said? और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? परिस्थिति अभी हम आप ही की बात करते हैं ना, नहीं पता। गालियाँ निकाल रहे थे एक दूसरे को, लड़ाई कर रहे थे। It is not about when you are having a presence of a teacher, you are in a discipline. It matters, you need to be in a discipline even the presence of the most holy God is not there. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टीचर की एब्सेंस में आप अनुशासन लागू कर रहे हैं, आप अपने टीचर की प्रेजेंस में अनुशासन लागू कर रहे हैं, पर आप अपने एब्सेंस में अनुशासन का, डिसिप्लिन का कोई आपके जीवन में कोई शब्द नहीं है। Discipline is very important for your life. और अनुशासन आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Discipline is important because you need to be a disciple of Christ. और अनुशासन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने परमेश्वर का शिष्य, परमेश्वर के चेले बनना है। Unless you are in a discipline, you are not a disciple of Christ. जब तक आप अनुशासन में ही नहीं हैं, तब तक आप परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के शिष्य नहीं बन पाएंगे। If you are using abusive words, you are not a disciple of Christ. अगर आप गलत शब्दों का गालियों को दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर के चेले नहीं हैं। If you are neglecting other person's voice, you are not a disciple. अगर आप दूसरे व्यक्ति की आवाज को, उसकी बुलाहट को अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। If you are not following the law of Christ, you are not a disciple. अगर आप परमेश्वर का कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, उसके कानून को, तो आप चेले नहीं हैं। If you are not working just like God wants you to work, you are not a disciple. अगर आप वैसा नहीं चल रहे कि जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप चले, तो आप शिष्य नहीं है परमेश्वर। If you don't have time for Jesus, you are not a disciple. अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, तो आप परमेश्वर के चेले नहीं To हैं। become a disciple, you need to be in a disciplined manner to work according to the will of God, not according to your own will. अगर आपने शिष्य बनना है परमेश्वर के, तो उसके लिए आपके पास अनुशासन होना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपासना कर सके। You need to be in a discipline to sanctify and satisfy God's will. अगर आपने परमेश्वर का शिष्य बनना है, तो आपको अनुशासन लागू करने की बहुत जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। It is not about the church. Many people I have seen. They come in a church. Oh, दिखाला माशाल्लाह काला काला. वो जो साधु वाला खड़ा होता है उसको देख के वो दिखाला माना कशा. They are ढोंग बजा रहे हैं लोग.
you are feeling His presence in your midst. ये परमेश्वर के ऊपर मैटर करता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं भी है पर फिर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे If हैं। you are abusing, you are saying wrongs, you are doing bad deeds, and you are doing this and you are doing that, that is not pleasing to Christ. You are not allowed to be a part of a Holy Communion too. अगर आप गाली गलौज दे रहे, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रभु भोज लेने के लायक नहीं है। Clarity is there. Right? What is Prabhu Bhoj, Holy Communion? प्रभु भोज क्या है? It means communing with God every day. It is not a seasonal process. It is a daily process. उसका मतलब होली कम्युनियन का मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाए, रोज संबंध बनाए। Every day having a communing with God, not a single one day in a month. हमेशा हर रोज हम परमेश्वर के साथ कम्युनियन करें, उसके साथ संबंध बनाए, ये नहीं कि साल के एक दिन में। Every day communing with God, हमेशा हर रोज परमेश्वर के साथ संबंध not बनाए, a single day. एक दिन के लिए You नहीं। don't need to be a pavitra person only a single day. हमें पवित्र व्यक्ति एक दिन के लिए नहीं बनना है। You need to become a pavitra person every day, every time, every second, every minute, every hour, every day and every week and every year. आपको पवित्र व्यक्ति इसलिए बनना है कि आप हर रोज, हर दिन, हर साल, हर हफ्ते और हर दिन परमेश्वर की उपासना करते रहे। Hallelujah. 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 Disciplines will lead to a discipleship, and discipleship will leads you to a decisional life. No one has their own decision in their life. They are just like a Kathputri. Other person is moving their what they want. To either that or to either. What it says, man, this is the discipleship. No, this is a bandish. Discipleship और bandish अलग चीजें हैं. You need to be a disciple. Don't want you to be a bandish. आपको परमेश्वर का शिष्य बनना है, परमेश्वर का चेला बनना है, बल्कि गुलामी में अपने आप को बंदिश नहीं करवानी है। He brought up Israelite from the Gulami, and still the persons are in Gulami. उसने इजरायलियों को गुलामी से आजाद किया, पर आज के युग में भी अभी भी लोग जो है वो गुलामी में ही है। Reason, the discipline. The reason behind that Gulami is discipline. They are not in discipline, that's why they are in Gulami. वह अनुशासन में नहीं है, तभी तो वह गुलामी में है। He brought us from Egypt. उसने हमें मिस्र की गुलामी से निकाला है। Still the person are stuck in that. और फिर भी लोग जो हैं उसके अंदर ही बंदिश में है उसके। Discipleship will give you a freedom to live according to the will of Christ into your lives. जो शिष्यता है, जो चेले बनना है, वो आपको स्वतंत्र करते हैं। And disobedience will lead to your destructionful life. और ये अनाज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस को क्रिएट करता है। अनाज्ञाकारिता आपके जीवन को बर्बाद करके रख देती है। आज्ञाकारिता उस अवसर तक लेकर जाती है जहाँ पर ना आपने कभी सोचा होगा, ना कभी आपने देखा होगा, ना आपने कभी सुना होगा। Hallelujah. If you are saying wrong to other persons, you are not a disciple. अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी अलग व्यक्ति को अगर आप गलत कह रहे हैं तो आप परमेश्वर के शिष्य, परमेश्वर के चेले नहीं है। If you are not obeying the law of Christ, you are not a disciple. अगर आप परमेश्वर का कानून जो है उसको मान नहीं रहे हैं तो आप चेले नहीं हैं। Everyone needs to be in a discipline to be a disciple of Christ, and you want to be the sheep of Christ, not the goat of Christ. और आपको क्या है, आपको अगर परमेश्वर का शिष्य, परमेश्वर का चेला बनना है तो आपको अनुशासन में रहने की जरूरत है और आपने परमेश्वर की भेड़ बनना है, ना कि बकरी। Just want to give you one example. मैं आपको एक
उदाहरण देना चाहता When we हूँ। have a Holy Communion, जब हमारे चर्च में होली कम्युनियन प्रभु भोज होता many है, people have taken the Holy Communion, बहुत से लोग जो है वो प्रभु भोज को लेते हैं, but they just drink and they just do cigarette picking, all that nashing. चर्च में कब कैसे आते होते हैं? How do they come into church? वो चर्च में कैसे आते When हैं? I touch their chest, जब मैं उनके चेस्ट को टच करता हूँ, अंदर से भी काम रहते हैं, इतनी उपस्थिति उनको महसूस होती है उसको ताकि वो कहते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, and that's what changes your life. और वो ही आपकी जिंदगियों को बदलता है। इधर आपको कैसा क्या अच्छी चलती है, कारण कहते चलो चलिए चलो चलिए, है ना? They don't have fear of God. उनको परमेश्वर का भय नहीं है। Discipleship has a fear of God. परमेश्वर का शिष्य बनना, परमेश्वर का शिष्य बनना परमेश्वर का भय लाता It है। is not in the presence of the Holy God you need to be fearing Him. You need to fear Him even though you are doing your works. इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तभी आप परमेश्वर का भय माने, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने दूसरे कामों में भी व्यस्त हैं तब भी आपको परमेश्वर का भय The माने। discipleship will lead you to a destination that is called heaven. और जो शिष्यता है, जो चेला बनना है, वो आपको एक डेस्टिनेशन में ले जाता है जो कि स्वर्ग राज्य है। कई लोग कहते हैं कि पादरी साहब हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ने हमारे पाप को माफ कर दिए। ओह, सबसे बड़ी गलती है उनकी, बताओ। You know? कहते बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ने हमें माफ कर दिया। सबसे बड़ी गलती यही है उनकी। बपतिस्मा लेने से पहले जितने पाप किए उन सब का पश्चाताप माफ है। बपतिस्मा के बाद जितने उसने वहां पर टाल कि तू बपतिस्मा लेने के बाद भी क्यों डिसाइपल नहीं बना, चेला क्यों नहीं बना, राइट? चेला बनने के लिए डिसाइपलशिप में आना बड़ा जरूरी है। You need to come into a discipline to grow a church. आपको अनुशासन में आने की जरूरत है अगर आप चर्च में बढ़ना चाहते हैं। We are here, right? हम यहाँ पे मौजूद हैं। How many people are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 people are there, right? And be so very attentive. Everyone has given a will from God. और हम 20 जने हैं और हम एक को परमेश्वर की योजना के अनुसार एक योजना मिली है। Everyone has given a privilege from God. Everyone has to fulfill the will of God into their lives. और हर किसी को परमेश्वर ने एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। Everyone, you are the sheep of Christ. और आप जो हैं वो परमेश्वर के बेड़े हैं। We are the shepherds. और मैं जो हूँ वो मैं चरवाहा हूँ। We are the shepherds. और हम जो हैं वो चरवाहा हैं। Okay? Shepherd doesn't bear sheep. जो चरवाहा है वो भेड़ों को जन्म नहीं देता। Sheep bear sheep according to Bible. और बाइबल के अनुसार भेड़ भेड़ों को जन्म देती है। Right? In my church, I tell everyone, in our church, I tell everyone to bring one bhed with you every Sunday. मैं अपने चर्च में हर किसी को बोलता हूँ कि आपने क्या करना है कि अपने साथ एक भेड़ चर्च में जरूर लेके आनी है। And that's not my headache, that is your headache. और वो मेरी सिरदर्दी नहीं बल्कि वो आपकी You सिरदर्दी need है। to bring, you need to bear fruits to get the reward from the heavens. One sheep means 1,000 times more blessings into your life. आपको परमेश्वर आपको भेड़ों को जन्म देना है और ये ही आपको स्वर्ग से एक रिवॉर्ड मिलेगा कि आपने बहुत सी भेड़ों को जन्म दिया। और एक भेड़ को अगर आप जन्म देते हो तो आप 1000 टाइम्स करके ब्लेसिंग्स को पाते हैं। One sheep is equal to thousands, and if you bring 10 sheep, it will be gonna go towards the 10,000s. और अगर आप More blessings into your life. अगर आप एक भेड़ को जन्म देते हैं तो आप 1000 ब्लेसिंग्स को पाते हैं। और अगर आप 10
temple of Christ. You ताकि need to आप pray, अपन- you need to work upon your life before working out. बुले शाह एक जगह कहता है, बुरे नु मैं लबन फिरया बुरा न लबा कोई, विच अंतर झांक के वे कहते मेरे तो बुरा ना कोई. We need to first work on ourselves. You know what? The Bible says पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया. What is Jerusalem? Jerusalem is Jesus' house. According to New Testament, we are the temple of Christ. He is living in us. And we need to work first upon our lives. We need to remove all the negativities, all the wrong things from our lives to work on another person. Right? Yes. यरूशलेम हम है क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और हमें अपनी जिंदगी में अपने जीवन में सबसे पहले काम करनी है ताकि हम आगे बढ़ सकें. Jerusalem is where Jesus lived. और यरूशलेम जो है वो परमेश्वर जहाँ पे रहते हैं. According to New Testament, we are the temple of Christ. According to Paul says in his letters, we are the temple of Christ, and Jesus lives in us. और नए नियम के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करते हैं. Brother, इधर आओ. Okay. Listen. क्या बोला था? कि हम परमेश्वर We are the का- temple of God. परमेश्वर हमारा मंदिर है. हम परमेश्वर के मंदिर है, and He lives in us. Sorry. We are the temple of the living Christ, and He lives in us. और हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हमें वास करता है. Before working on other person, first we need to work upon ourselves. हमें दूसरे व्यक्ति पर काम करने से पहले अपने आप के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. I'm gonna give you my testimony. मैं आपको अपनी जिंदगी की गवाही देना चाहता हूँ. From at the age of 6, 7, I wanted Jesus to मुझे बेनिहीन जैसा वरदान दो. और जब मैं 6-7 साल का था तब मैं कहता था कि परमेश्वर मुझे बेनहीन जैसा वरदान दो. Everyone who tells me क्या बनना मैंने कहा फर्स्ट बेनिहीन जैसे टच करना सारी दिख जा. और जब सब मुझे पूछते थे कि आपको क्या बनना है तो मैं उनको कहता था कि मुझे बेनहीन बनना है. Right? I didn't work upon myself. और मैंने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया. तब इतना नॉलेज नहीं था. Right? I didn't work upon myself. I just speak from my mouth. I want to become like Benjamin. और मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया बल्कि मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया. When I worked upon myself, और जब मैंने अपने ऊपर काम I किया fasted for more than 9 months in my life. और मैंने 9 महीने के लिए उपवास अपनी जिंदगी के लिए किया. A new life begins after 9 months. और 9 महीने के बाद मेरी जिंदगी जो है वो A नई new life begins after 9 months. और एक नया जीवन 9 महीने के बाद मेरी जिंदगी में आया. नया जीवन 9 महीने के बाद दिखता है, होता है. Okay? Listen. Okay. 9 months in my college, no breakfast, no lunch, only dinner. If I went till 7 o'clock, I ate. If I don't went, I ate next night. और जब मैं अपने कॉलेज में था 9 महीने के लिए मैंने उपवास रखा. मैं ना ही सुबह का ब्रेकफास्ट करता था ना लंच करता था. और अगर डिनर मैंने 7 बजे अगर मैं चले जाता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता. Because को देते नहीं थे 7 बजे से पहले कोई आया खाने के लिए. तो ठीक है 7 बजे के बाद जो है 1 मिनट भी ऊपर गिरा होता था. That's all. ऐसे कहते थे. Like 7 बजे से पहले अंदर चले गए, मैं हॉल के अंदर खाना मिल गया. 7 बजे से 1 सेकंड 1 मिनट भी ऊपर चले गया, निकलो यहाँ से, नहीं देना खाना. 3 times I did like this. I didn't went for food to eat, and I ate after 2 days, after 3 days in the night. 3 बार मैंने ऐसा किया और मुझे खाना नहीं मिला तो मैं 2-3 दिन बाद मैं खाना खाता था. In those 9 months, I preferred my life as I don't want to become like Benjamin. I want to become like Jesus, who gave him that power. और वो 9 महीने में मैंने उपवास रखा और मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे बेनहीन की तरह नहीं मिलना, मुझे यीशु नासरी की तरह बनना है जिसने उसे सामर्थ्य दी. It was the first year of my journey in New Theological College as a PhD student. और वो मेरी जिंदगी में एक Okay. It was my
first year of my college, I was in the beginning of my journey. और वो मेरा पहला साल था मेरे कॉलेज में, जो कि मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा था। At that time, God gave me a vision to fast for 9 months, and the 9th month, as soon as it ends, the another day will be the blessing for you, and I received the most powerful power of the most holy God. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बताया कि तू 9 महीने के लिए उपवास रख, और 9 महीने के लिए तू जब उपवास रखेगा, उसके अगले दिन ही एक बड़ी सामर्थ, एक बड़ी आशीष तुझ पर आएगी। In all that 9 month, I told Jesus to make me a disciple, a disciplined person. और वो 9 महीने में मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे अपना चेला, मुझे शिष्य बना दे। And BD1, BD2, BD3 and BD4. First year was BD orientation, and then BD1, BD2, BD3, BD4. I was a leader for 4 years in that college, जहाँ पर वो नॉर्थ के बच्चे को बनाते ही थे लीडर को। और मैं जो 4 साल के लिए वहाँ पर लीडर बना रहा। 5 साल का डिग्री, 4 साल लीडरशिप की मैंने। 9 महीने के बाद एक अच्छा तोहफा परमेश्वर से मुझे मिला। A disciplined life will lead you to a leadership. और एक अनुशासन वाला जीवन आपको शिष्य बनाता है। Right? उन 9 महीने में मैंने को खुदा का कहा, मुझे यीशु जैसे हो चाहिए, जो उसके पास था वो चाहिए मुझे किसी और का नहीं चाहिए, मुझे खुदा का पर्सनल मसा चाहिए। हालेलुया। उन 9 महीनों में मुझे समझ आई, ओ मैं तो ऐसे पागलों की तरह करता रहा, बस जो मैं नहीं जैसा था तो वो जीसस। हालेलुया। यीशु कहाँ जिसने उसको दिया। We all have different opportunities, different will from His. हमारी जिंदगी में अलग अलग अवसर आते हैं, अलग अलग योजना आती है उसके लिए। You need to be a disciplined person to become a disciple. आपको अनुशासन को पालन करने वाला व्यक्ति बनना है, यदि आप चाहते हैं कि आप चेले बने। This whole week, 6 days, and 7th day will be the Sunday. और ये पूरे हफ्ते जो कि 6 दिन और 7वां दिन जो कि संडे है, All 6 days you need to work upon yourself. और ये पूरे 6 दिन आपने क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। You need to work upon yourself, and then we need to work upon the peoples. आपको ये 6 दिन अपने ऊपर काम करना है, ताकि हम दूसरे लोगों के ऊपर काम कर सके। And when you work upon yourself, और जब आप अपने ऊपर काम करोगे, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपके ऊपर उंगली खड़े कर सके। Right? कोई ऐसी नहीं होगा वो इधर रिस्पेक्ट से बात करेगा। राइट? जिसको बोलोगे जो काम करना वो करेगा। पहले अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। If you are not in discipline, other person will never. एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद ये सब आएंगे। ठीक है? एक स्टोरी बताऊंगा। एक औरत थी, वो अपने बेटे को किसी पंडित के पास लेके गई। हिंदी में चलेगा? एक औरत थी जो अपने बेटे को पंडित के पास लेके गई। वो कहती, पंडित जी ये बड़ी चीनी खाता है। चीनी खाता है, गुड़ खाता है, ये खाता है, वो खाता है, मीठा बड़ा खाता है, नो शुगर हो जानी है, नो समझाओ थोड़ा सा, इसको शुगर हो जाएगी, इसको समझाओ थोड़ा सा। पंडित ने पता क्या कहा? 21 दिन के बाद रखा। 21 दिन के बाद 21 दिन हो गए। माता फिर जाती है अपने बेटे को लेके, पंडित जी कौन दसो मैंने समझाओ कुछ। पंडित कहता, बच्चे ज्यादा मीठा नहीं खाना, शुगर होती है इसे। कहती भरावा है, कल तू पिछली बार भी कह सकते थे 21 दिन का गैप क्यों पाता? 21 दिन का गैप क्यों डाला तुमने? वो कहता कि पहले मैंने अपने ऊपर काम किया। जिस समय तू आई थी अपने बेटे को लेके, मैं भी बड़ी चीनी खाता था। 21 दिन में मैंने अपनी लत छुड़वाई, तभी मैं किसी के ऊपर कमांड कर रहा हूँ कि तू भी छोड़ इसको, ये चीज गलत है। एंड व्हेन यू विल डू लाइक दिस, नो पावर कैन स्टॉप योर कमांड। और जब आप ऐसे करेंगे कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। नो पावर कैन स्टॉप योर कमांड। कोई भी ताकत आपके कमांड को, आपकी आज्ञा को रोक नहीं आई एम सकती।
standing upon the pulpit. This is the holy throne of God. और मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ, परमेश्वर का सिंहासन इस जगह पे मौजूद मैंने है। अपने पर इतना काम किया ना, कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरी बात को ना बोल सके। मेरे सामने कोई नहीं बोलता, पास्टर जी को पता होगा कि पास्टर्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? I have taken a command shield of Christ. I have put it the full armor of Christ upon my life. मैंने अपने ऊपर पूरी धार्मिकता की पोशाक पहनी। जिसको कहता हूँ बैठ जा, वो बैठ जाता है। जिसको कहता हूँ उठ जा, वो निकल आता है। कमांड आएगा तब काम होगा। कमांड तब आएगा जब आप अपने आप को चेला बनाओगे। चेला वर्ड गलत है, चेला वर्ड गलत है। डिसाइपल चेला नहीं होता, शिष्य जो शिक्षा को लेता जाता है। चेला फिर मेला, फिर क्या अकेला, अकेला खत्म, टाटा बाय बाय गया। अपने आप को इतना डिसिप्लिन में रखो कि कोई आगे से ऐसे करने से पहले 1000 बार सोचे। बिना डिसिप्लिन के डिसाइपल नहीं बन सकते आप। डिसाइपल नहीं बन सकते। हमारे चर्च में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा बच्चा भी है, बड़े बुजुर्ग भी है, और वो कहते हैं ये नहीं करना तो नहीं करता। डांट भी देते हैं फिर भी कुछ नहीं करता। कमांड, you need to work. Unless you work, you're not going to get the gifts of Christ. जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के तोहफों को नहीं पा पाएंगे। This week, you have a time to become a disciple. और ये हफ्ता आपके पास है कि आप परमेश्वर के शिष्य, परमेश्वर के चेले बने। The seventh day will be the blessing for your life. Seventh day will be the blessing. और जो 7वां दिन है वो आपकी जिंदगी में आशीष का दिन है। Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You need to work upon yourself. और आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। You need to grow this church. That is your responsibility and our responsibility. This is a will given from God to us. And if you are not fulfilling, I just want to quote one thing. This is the will of God that is given to you. ये परमेश्वर की योजना है जो कि आपको दी गई है। Delay God's will is means denying God's will. अगर आप परमेश्वर की योजना को डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की योजना का उल्लंघन कर रहे हैं। Every time you wait कि आज नहीं, वो थोड़ी देर बाद प्रार्थना करते हैं। वो कोई गेस्ट आ गया, वो गेस्ट को भी बिठाओ प्रार्थना में, वो भी आशीष लेके जाए थोड़ा सा। हमारे चर्च में कहते हैं ना, कभी कभी कहते वो पास्टर जी हम आए नहीं, मैं क्यों नहीं आया संडे को? कहते कि पास्टर जी वो चर्च में घर पे गेस्ट आ गए थे, मैं गेस्टों को भी चक के लेके आना था प्रार्थना में, अगर तो संडे को आते। और ऐसे ही गेस्ट है ना, आते संडे को आए और कोई टाइम नहीं उनके पास, वो टाइम ही नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, आते ही संडे को आए। कहते वो टाइम नहीं है, अच्छी सानू छुट्टी है, वो तानू छुट्टी सानू थोड़ा छुट्टी, हमने अपना काम नहीं किया। राइट? I work all the 6 days. मैं पूरे 6 दिन काम करता हूँ प्रभु का, संसारिक नहीं। संसारिक काम के लिए बड़े टाइम है। बोले मैं कहीं जाऊँगी ना, मैं प्रभु का टाइम बोले रात को 11 बजे पहुँचूँ, मीटिंग खत्म करके आता जहाँ पे दी होती है। Every time you delay, you are denying the God's will. आप जितनी बार परमेश्वर की योजना को डिले करेंगे, उतनी बार आप परमेश्वर का उल्लंघन करेंगे। अपेंडिक्स के टाइम पे कोई बंदा हिल नहीं पाता। अपेंडिक्स जब होती है ना बंदे को, वो बंदा हिल नहीं पाता। अपेंडिक्स के टाइम पे मैंने 24 घंटे में से 21 घंटे प्रार्थना किया, 3 घंटे सोता था मैं। लोगों के पास बातें बोलना कभी कहती पास्टर जी
पास्टर जी मैं नहीं की दुआ पास्टर की बात करें राइट पास्टर जी लत्त बड़ी पीड़ हो गई थी वो लत्तां दर्द हो गई मैंने दुआ नहीं की अगर प्रभु की इच्छा में आप विलंब डालते वो आपके जीवन में ऐसा विलंब डालेगा जिसको आप कभी नहीं देख पाओगे प्रभु की इच्छा में अगर विलंब डाला तो वो आपकी इच्छा में आपके जीवन में ऐसे विलंब डालेगा ना वो आपको भी नहीं पता भी कौन से ठोक के रख देता प्रभु ने प्रभु ऐसा वर्ड नहीं उसके बारे में बट वो ऊपर से नीचे भी कर सकता है और नीचे से ऊपर भी फर्शों से अर्शों पे भी ले आता है आपका डिसिप्लिन आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा और ऊपर से नीचे लेके आएगा तो मैं किसी के घर की बात बता रहा था कि वो घर के बाहर में खड़े हुए उनकी गालियां सुन रहा था पहले अंदर गया वो बात ये प्यार की बात ना अच्छा गाला मेरा मन में कहा मेरी गालियां ना सुन मेरा क्योंकि क्या बोलूं मैंने कभी ऐसी गाली नहीं सुनी कभी मैं शर्मिंदा मैं गाने नहीं गाली मैं इनका खत्म होता फिर अंदर जाता तो अंदर गया वो कहते पादरी साहब आपकी बात कर रहे थे मैं गालियां देना तो उनका आपको नहीं सिखाता अगर आप गालियां देते तो आपको पवित्र खुदा के प्रभु बोझ में शामिल होने के लायक नहीं हो सीधी बात अगर आप झूठ बोलते तो पवित्र खुदा के बोझ में शामिल होने के लायक नहीं हो मैं तो कई बार ना स्कूटी चलाता हूँ मैं पीछे से गाड़ी में हो गया वो गालियां देते रहते हैं मैं अपना जाता मैं कभी किसी को पूछूंगा हम एक डिसाइपल हैं पादरी से पहले हम एक डिसाइपल हैं डिसिप्लिन में रहते हैं तो हमारा डिसिप्लिन वहाँ पे शो होता है जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती है ठीक है हमारा डिसिप्लिन वहाँ पे शो होता है जब हमारे साथ कोई गड़बड़ होती है मेरे को बड़े लोग बड़ा लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कई लोग हमारे खिलाफ भी हैं आई डोंट केयर यू केयर नो आई डोंट केयर बिकॉज मेरा खुदा जो है हमारा खुदा जवाब देगा क्यों हमने अपना जीवन अनुशासनित किया वर्ड बड़े डिफिकल्ट है याद करके अनुशासनित डिसिप्लिन आपके जीवन में डिसिप्लिन होगा आपको पता नहीं चलेगा चमत्कार कैसे हुआ अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है आपका जीवन पूरा डिस्ट्रक्शन है खत्म टाटा बाय बाय क्या You need to work upon yourself this whole week. You need to work upon yourself. और आपको इस पूरे हफ्ते अपने ऊपर काम करना है Dr. Miles Monroe he said once. और जो डॉक्टर माइल्स मॉनरो है उसने एक बार कहा है कि Do something for the Lord or die empty. Do something for the Lord or die empty. और उसने कहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ करो और अपने आप को खाली करके मरो प्रभु के लिए कुछ करो या खाली मत प्रभु के लिए कुछ करो या खाली मत जाओ मरना चाहिए प्रभु के लिए ना कुछ करने से भाई सही अगर आप नहीं करते प्रभु के लिए कुछ आप कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 20 लोग लगा 20 लोग एक पेड़ हर संडे लेके आए तो कितना होगा 40 से 2 40 एक और एक लेके आएंगे फिर 80 ऐसी कलीसिया बनती है चर्च डिपेंड्स अपॉन द पीरियड चर्च ग्रो नहीं होती काम किसका खराब पिछले हफ्ते कहा था यू नीड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ आपको अपने ऊपर काम करना है एक दूसरे पर काम करने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना है और पादरी को आपने जाना भी हमें उनके पास काम करने हमारे चर्च में इतनी कलीसिया इसलिए बड़ी हम खुद भी सर्च करते हैं लोगों को बताते हैं कि हम पादरी हैं वो खुद बुलाते हैं डिसिप्लिन रखा है हमने व्यक्ति और डिसिप्लिन ही है एक जो आपके जीवन को बढ़ाएगा और जीवन को तब बढ़ाएगा जब ये चर्च हमें एक प्रोफेसी करूँगा यहाँ पे 1:11 डेट 1 फरवरी तेरे में घंटे के 16 मिनट
6 दिन का नियम निकाल पहला दिन 13वें घंटे का 11वां प्रोफेसी याद है शक्रमानी संग चर्च की उपस्वारी आपका काम हमारा काम अनलेस यू वर्क अगर आप प्रभु का काम नहीं करोगे संसारिक कामों में व्यस्त रहोगे तो प्रभु भी व्यस्त रहेगा जब आप प्रभु को कुछ काम करोगे ब्लेसिंग लेनी है डिसाइपल डिसिप्लिन ये पूरा हफ्ता रहना मंडे से लेके सैटरडे तक कोई गलत बात नहीं मुंह से निकलना है चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए हमारे चर्च में जो चुगलियाँ करते हैं गेट आउट ऑफ द चर्च कोई फर्क नहीं पड़ता इधर की बात ना उधर ना उधर की इधर डिसिप्लिन होता है कौन कहता है कहने में कुछ लेना देना रखो किसके साथ वर्क इन योर लाइफ ये जिंदगी में काम चर्च को ग्रो करना है पहली तरीका पहली तरीके से काम स्टार्ट करो और ये नहीं कि संडे है तो चर्च ओ आप दुआ कर ली चर्च में हो गया खत्म चर्च अब नहीं कोई जरूरत अरे यू नीड टू स्पेंड टाइम विद गॉड we sit in the Lord's presence approximately 8 hours. 8 hours, 8 घंटे दुआ में बैठते ऐसी भी औरत ना मुंह धो के फिर बैठते कि नो बाइबल खोलते सो जाते वो कहते कि पाजी कहते बाइबल नहीं पढ़ते कहते हाँ पढ़ते नींद दिलाए नींद वाली भी दुष्ट आत्मा है अगर आप बाइबल खोलते ही नींद आ जाती है तो आप किसी बंदिश में हो उससे कमाल प्रॉफिट बाहर काम को जब डिसिप्लिन राइट एक चीज जाएगी काम हम कलीसिया हैं इस चर्च की राइट प्रॉफिट लोग सुबह इनके लीडर जब तक वो थे तब तक सब लोग वही हो गया प्रेजेंस में अच्छे हैं हालेलुया रिखाला माशा ये बोलते हैं गालियाँ भी देने के बाद सिगरेट पीते हैं एक डिसिप्लिन का बात होता है चर्च की घर से जब निकलता हूँ कई लोग सिगरेट पी रहे हैं सिगरेट ऐसे बंद करते हैं नजर आ जाते हैं एक के तो धुआं निकलने लगा पैंट फटती है आग लग जाए पैंट में लेकिन उसने पकड़ के रखी है हैंड की भी नहीं उसने राइट खौफ है प्रभु का जब प्रभु सामने आता है हमें खौफ होना चाहिए जब उसके ऊपर जितनी भी बातें सामने वो फिर भी हमें देखना है आदमी से लोग डरते हैं आदमी से डर के कहाँ से नो नो डरो खुदा का भय है खुदा ने कहा मेरे भाई में छुड़ो क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है अगर आप तो भाई कैसे आएगा डिसिप्लिन से डिसिप्लिन कैसे आएगा डिसाइपलशिप और जब डिसाइपलशिप बनोगे तो आपके जीवन में एक डिसीजन होगा जिस डिसीजन के ऊपर आप काम कर सकते हो राइट हालेलुया 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 कुछ चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट करती हैं चर्च के लिए बट मैं बहुत अच्छे से काम ये नहीं कि मैं थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हूँ